माननीय सचिव नगर विमानन मंत्रालय श्री प्रदीप सिंह खरोला जी, प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, प्रधान महानिदेशक मीडिया एंड कम्युनिकेशन श्री दत्वालिया जी, प्रेस और मीडिया के सभी सम्माननीय सदस्यगण, उच्चतर शिक्षा विभाग, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से उपस्थित सभी सदस्य, अधिकारीगण और पीआईबी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी राज्य सरकारों के प्रधान सचिव, अधिकारी महोदय, स्मार्ट सिटीज और नगर पालिकाओं के अधिकारीगण, भारत के सभी विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए अधिकारी और छात्रगण और वो सभी तमाम सदस्य जो नागरिक जो पीआईबी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस समारोह को देख रहे हैं, मैं आप सभी का इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं कुणाल कुमार, संयुक्त सचिव, स्मार्ट सिटीज मिशन, शहरी व आवासन कार्य मंत्रालय। किसी के सपनों को उड़ान देने से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होती है। राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान देने से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं होता है। आज का हमारा प्रोग्राम ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम हमें इन दोनों ही चुनौतियों से रूबरू कराता है। हमारे युवक जब शहरी प्रशासन की चुनौतियों को करीब से देख पाएंगे, मुश्किल प्रकल्पों पर काम करेंगे, वह संवेदनशीलता, सहकार्यता व सामूहिकता के गुणों को आत्मसात करेंगे, तब सही मायने में इस देश का युवा उसकी शक्ति बन के उभरेगा और राष्ट्र निर्माण को समर्पित हो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेगा। ट्यूलिप is a program to provide internships to young Indian graduates in all urban local bodies and 100 smart cities of the country. It fulfills twin objectives of one, providing experiential learning to youth, thereby increasing their value to society, and two, to promote nation building through incorporation of fresh ideas and energy into urban governance in our cities. इस छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ मैं दोनों माननीय मंत्री महोदयों के उपलब्धता में मेंबर सेक्रेटरी एआईसीटी और मैं खुद स्टेज पर आकर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान करेंगे। दोनों ही मंत्री गणों को मैं अनुरोध करूंगा कि इस आदान प्रदान के लिए वो कृपया अनुमति दें। धन्यवाद। Namaskar. Good morning, everyone. Honorable Minister for Human Resources Development, Sri Ramesh Pokhriyal Nishank ji. Honorable Minister for Housing and Urban Affairs, Sri Hardeep Singh Puri ji. Secretary Higher Education, Sri Amit Khare ji. Secretary HUA, Sri Durga Shankar Mishra ji. Secretary Civil Aviation in the audience, Pradeep Singh Kharola ji. DG Media, KS Datwalia, he is here. Persons from the media, faculty members, deans, HODs, vice chancellors who are viewing this particular very important program for empowering our students, youth, in order to get internships in various types of activities which are going to be involved. Our Honorable Prime Minister's vision of getting demographic dividend and achieving that has been translated into some sort of a announcement which was made by Honorable Finance Minister in the budget speech in February. Nirmala Sitharaman ji talked about providing internships to graduates in about 4,400 urban bodies. This was in February, and immediately Ministry of Housing and Urban Affairs took it up, and within a matter of just 2 to 3 months, we came out with a program where we can create a portal which was going to be launched today by the two honorable ministers, which was prepared and made ready by the team of AICTE, headed by my friend here who is sitting in the audience, Chandrasekhar Buddha, who has joined as Chief Coordinating Officer, along with two students from Graphic Era University. They were interning in AICTE.
Akash Pandey and Shivanshu Gupta. And it's a wonder that something which is of an enterprise level software tool, which is a portal, which is absolutely robust, was prepared and created within 2 months. I should also thank the officials of the Ministry of Housing and Urban Affairs who gave a lot of ideas to improve upon the portal, and both the teams, MOHA and also HRD ministries teams and AICT worked together as a team, and this dream has come true. So what was announced in the budget in a matter of 3 to 4 months is practically available. More than about 44,000 internships are likely to be available through 4,400 urban bodies and 100 smart cities. So I think I congratulate both the ministries for taking this step forward and coming of age. मेरे ख्याल से इसके अलावा AICT ने कोविड-19 टाइम में जब लॉकडाउन था, काफ़ी अदर इनिशिएटिव्स को भी हाथ में लिया हुआ था, उसके बारे में भी मैं कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने टीचर्स ट्रेनिंग का महत्व देखते हुए निटर्स के माध्यम से एक कोर्स लॉन्च किया हुआ था 8 मॉड्यूल वाला, और इसको जब तक टीचर्स कंप्लीट नहीं करेंगे उनको रेगुलराइजेशन नहीं होगा, और बाद में प्रमोशन के लिए भी इसको हमने लागू किया गया है। तथा हमारे जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पहले क्लासरूम में होते थे, तो उसको हमने ऑनलाइन मोड में लिया हुआ है, और आज खुशी की बात यह है कि 50 के ऊपर प्रोग्राम अटल एकेडमीज के अंदर नए जो सब्जेक्ट्स आ रहे, उभर रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन, ये सभी कोर्सेस हम ऑनलाइन मोड में 50 के ऊपर वर्कशॉप्स किए हैं 5 दिन के, और फैकल्टी को ट्रेनिंग दिया गया है, और ये सभी अभी करिकुलम में लागू किए जा रहे हैं। और इसकी महत्वता ये भी है कि एक एक प्रोग्राम में पहले हम 50 लोगों को ही ले सकते थे, ये ऑनलाइन मोड में 200, 500, कई प्रोग्राम में 1000 के ऊपर भी लोग इसमें शामिल हुए हैं। तथा हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज और स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के भी वर्कशॉप 15 के ऊपर हुए हैं, जिसमें अनेक वाइस चांसलर्स, डीन्स तथा फैकल्टी मेंबर्स को ट्रेनिंग दी गई है, और इसको भी पूरी तरह से लागू दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ रिसर्च के लिए बढ़ावा देने के लिए रिसर्च के बारे में भी 3 सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज किए, ऑनलाइन सेमिनार्स। और AICT की तरफ से एक नीट पोर्टल 5 महीने पहले शुरू हुआ था, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजीज। इसके तहत ये जो अलग अलग टूल्स और प्रोडक्ट्स है, जिसके तरीके ऐसे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ये लागू करने के लिए ये प्रोडक्ट्स हमारे पास थे। इसमें फी देनी पड़ती थी, लेकिन अभी काफ़ी कंपनियों ने उसको मुफ्त में देने का अपना निर्णय लिया, और काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका लाभ हो रहा था। और उसके अलावा कई नई कंपनियां हमारे साथ जुड़ गई, और मेरे ख्याल से एक महीने में 1 करोड़ के ऊपर स्टूडेंट्स ने इसको देखा हुआ है, और करीब करीब 10 लाख छात्र इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कोविड होते हुए भी ये सब कार्य जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो ले रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य है। और आज ये तुलिप जो प्रोग्राम है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसका लॉन्च करने के लिए मैं दोनों मिनिस्टर्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो करेंगे। और इसके अलावा हमारे जो MOU हुआ है, इसको आगे बढ़ाते हुए और भी ज़्यादा इंटर्नशिप्स कॉलेज में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी देने की सुविधा हम करने की कोशिश करेंगे। और अगले 5 साल में बाकी सभी इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते हुए करीब करीब 1 करोड़ इंटर्नशिप्स को जन्म देने की हमारी जो संकल्पना है, उसको साध्य करने के दिशा में हम काम करते रहेंगे। इसे कहते हुए मैं 4 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। मानव संसाधन मंत्री जी, माननीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री जी, हमारे कलीग सेक्रेटरीज, बंधुओं, अभी आज का जो कार्यक्रम है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, जिसमें पूरे देश भर से तमाम सारे विश्वविद्यालयों, इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडी से, राज्य सरकारों से लोग जुड़े हुए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट स्पीच में की थी कि द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू स्टार्ट ए प्रोग्राम
whereby the urban local bodies across the country would provide internship opportunities to fresh engineers for a period up to 1 year. ये पहले बार हिंदुस्तान में पहले बार, मतलब मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूं कि देश में पहले बार इस प्रकार की व्यवस्था हुई, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने ये घोषणा की कि जो यंग ग्रेजुएट्स हैं उनको हम अर्बन लोकल बॉडीज के साथ जोड़ेंगे एज ए इंटर्न। इसके पहले कभी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और ये घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है यूथ को पूरा उपयोग करने के लिए, जो देश का एक हमारा $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक बढ़ने के लिए यूथ की पूरी क्षमता को कैसे उपयोग करें, उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। माननीय वित्त मंत्री जी की इस घोषणा के बाद हमारे मंत्रालय ने मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत AICT, जिसमें सचबुद्धे साहब को आप सुन रहे थे, AICT के साथ मिलकर के हमने एक और विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कैसे चीजों को आसान से आसान किया जाए, हाउ टू ब्रिंग ईज ऑफ लिविंग इन द पीपल्स लाइफ, कैसे उसको हम लोग इंश्योर करें। इन चीजों को देखते हुए कि हम लोग कैसे करें कि इतनी बड़ी चीज पूरे देश भर में हम लोग सारे अर्बन लोकल बॉडीज में करें। कहीं से भी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति किसी विषय में ग्रेजुएशन कर रहा है जो कि अगर हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के लिए यूजफुल है, तो कैसे वो जुड़े आसानी से। जैसे उदाहरण के लिए सर मुख्यमंत्री रहे हैं मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री जी उत्तराखंड के, अगर देहरादून का कोई बच्चा त्रिची में ट्रेनिंग कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो इंजीनियरिंग की या प्लानिंग की पढ़ाई कर रहा है और वो चाहता है देहरादून में आकर के ट्रेनिंग करने के लिए, अभी उसके पास कोई साधन नहीं है। इंटरव्यू देने के लिए भी उसको आना पड़ेगा, अगर वो आए तो इंटरव्यू देने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। देहरादून में है भी ट्रेनिंग कि नहीं, भी ट्रेनिंग व्यवस्था है कि नहीं है, इस समय कोई जरूरत है कि नहीं जरूरत, कुछ भी किसी प्रकार का बिल्कुल डार्कनेस में हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी की का एक विजन है, जिसमें आपको मालूम है कि देश का स्थान 142 से बढ़कर के 63 यानी 79 स्थान जंप किया, उसको हम लोगों ने आगे बढ़कर के हमारे दोनों मंत्रालयों ने एक पोर्टल तैयार किया और ये पोर्टल कंप्लीटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, चाहे वो क्या क्या उनको इस बार उन्होंने सोचा कि अर्बन प्लानिंग के बारे में करेंगे, इंजीनियरिंग के बारे में करेंगे, इनोवेटिव फाइनेंस पर किस विषय में करेंगे, कितने लोगों को लेंगे, क्या क्या काम करेंगे। यहां पे एक और मैं बात आपको जोड़ना चाहता हूं। अभी हाल में जो माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ एक घोषणाएं की थी, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा जो कि अभी एक ऑर्डर के एक आदेश के माध्यम से सारे राज्यों को जा चुका है और हमारे मंत्रालय ने ऑलरेडी उसके ऊपर हमने इंस्ट्रक्शन जारी की है, जिसमें राज्यों का बोरोइंग कैपेसिटी 2% बढ़ाने की है। उस 2% में 0.25% हमारे अर्बन लोकल बॉडीज की कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाने के बारे में अगर वो करेंगे तो उनको 0.25% का उनको इंटाइटलमेंट होगा। और 0.25% का 1/3 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जिसमें हमारा कंस्ट्रक्शन परमिट उसमें है। और ओवरऑल जो 0.5% पॉइंट्स अगर 3 चीजों को करेंगे वहां भी है, यानी लगभग 0.4% उनका जो इंटाइटलमेंट तभी होगा जो इस काम को करेंगे। अब राज्यों को इस प्रकार का चीज करने की उनके पास कैपेसिटी नहीं है, अगर वो करें तो अब ये यंग ग्रेजुएट्स को ले सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से, कि जिससे कि वो लाए और उनकी कैपेसिटी को यूज करें। इट्स ए विन 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 सिचुएशन फॉर एवरीबडी। बच्चों के लिए विन विन सिचुएशन है, उनको एक्सपोजर होगा इस हमारे अर्बन सिटीज, हमारी कॉर्पोरेशन कैसे काम करती है, टाउन एरिया कैसे काम करती है, नगर पालिका काम करती है, कैसे काम करती है और क्या कर सकते हैं हम, उनमें एक झिझक टूटेगी। और दूसरी तरफ सिटीज को फायदा होगा, उनके उस कैपेसिटी को यूज करेंगे। सरकार को और इंडस्ट्री को फायदा होगा। इंडस्ट्री को ऐसे लोग जिनकी कैपेसिटी आज इतनी बड़ी संख्या में, पूरी इंडस्ट्री एक हमारी कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की इंडस्ट्री है, वहां पे ऐसे लोग जो वास्तव में धरातल पे काम किए हुए हैं, उनको पहुंच करके उनके उस कैपेसिटी को यूज करेंगे। इट इज ए विन 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 फॉर एवरीबडी एंड अल्टीमेटली हु इज द विनर? द कंट्री इज द विनर। सो बिकॉज वी आर यूजिंग द यूथ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ये हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, जिसको हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट स्पीच में कहा, उसको बेस मान करके हम लोगों ने शुरुआत की। सर इसमें कंप्लीट फ्रीडम, जो हमारा जो पोर्टल हमने तैयार किया, उस पोर्टल के बारे में डिटेल आप कोई भी अभी तुरंत हम इसको, जब हमारे दोनों मंत्री गण इसको जो है
रिलीज करते हैं, इस पोर्टल को जब लॉन्च करेंगे, ये कंट्री वाइड पूरे देश भर में 24/7 365 डेज हमेशा के लिए ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आप इसमें बच्चे को फ्रीडम है, आप अपना बना करके डिटेल बना करके अपने क्रेडेंशियल शेयर करिए, आप सेलेक्ट करिए कि हम ऐसा है कि मैं देहरादून का रहने वाला हूं, मैं देहरादून चाहता हूं, पौड़ी गढ़वाल चाहता हूं, मे बी नजीबाबाद चाहता हूं, ये हमारे 4-5 जगह वहां मैं चाहता हूं, उसको वो बता सकता है। मैं फला विषय में कर सकता हूं, हमारे ये स्किल में सीखना चाहता हूं। आपको हर एक चीज आपको अपने बारे में बताने का कंप्लीट फ्रीडम है, जो दूसरे के लिए विजिबल होगा। दूसरी तरफ जो हमारी अर्बन लोकल बॉडी है, उनको कंप्लीट फ्रीडम है। अभी वो स्टार्ट करते, केवल हम इनोवेटिव फाइनेंस चाहते हैं देहरादून में, ये कैसे हम लोग अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार कर सकते हैं, कैसे हम लोग जो है हम अपने अर्बन प्लानिंग को सुधार कर सकते हैं, कैसे हम लोग हमारा जो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है उस एस्पेक्ट को कैसे सुधार कर सकते हैं, वो अपना बताएंगे। स्वच्छ भारत का कार्यक्रम चल रहा है, कैसे हम लोग इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में कहेंगे। आप स्टाइपेंड तय करेंगे, उसको क्या क्या सुविधाएं देंगे, वो सारा बता सकते हैं। आप उस बच्चे को आने जाने के लिए कुछ उसको सुविधा क्या देंगे, कितना पैसा देना चाहते हैं, कंप्लीट फ्रीडम आपके लिए है। आप कैसे एंगेजमेंट के टर्म्स होंगे वो भी आपको, और यहां तक कि जब आप पूरा करेंगे अपना इंटर्नशिप पूरा करेंगे तो सर्टिफिकेट भी देने के लिए आपको कहीं अलग से कुछ छपाने की जरूरत नहीं है। इसी हमारे जो पोर्टल के माध्यम से आप सर्टिफिकेट ऑनलाइन दे सकते हैं। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारा का सारा एक रिपोजिटरी हमारी तैयार हो रही है। कोई भी इंडस्ट्री, ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो इस प्रकार के स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, अगर वो देखना चाहें कि कई जगह फ्रॉड होता है कि उनके पास ये सर्टिफिकेट सही है कि गलत है, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि इस बच्चे ने फला चीज का सर्टिफिकेट ये देहरादून में ये करके लिया कि नहीं लिया, उसकी कैसी परफॉर्मेंस है। इट्स ए कंप्लीट फ्रीडम टू एवरीबडी। यहाँ पे आप उसको इंटरव्यू करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली सेट अप इंटरव्यू। आज कल सवेरे 10 बजे हम इंटरव्यू करेंगे, यू कैन बी ऑनलाइन थ्रू दिस पोर्टल और आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से दिस प्रोवाइड्स कंप्लीटली यूथ के लिए भी, हमारे जो है मार्केट, इट प्रोवाइड्स मार्केट रेडी पीपल जो एक बार तैयार होंगे ट्रेनिंग के बाद। इसके लिए हमने व्यवस्था की है कि जब आप अपना पूरी करते पढ़ाई, उससे 1.5 साल तक कभी भी आप इंटर्नशिप में आ सकते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये जो पोर्टल बना है सर, मैं सर दोनों माननीय मंत्रीगण के संज्ञान में निवेदन करना चाहूंगा, ये पोर्टल बना है इंटर्न्स ने बनाया, AICTE के इंटर्न्स ने बनाया। आप सोचिए उनका कितना अच्छा काम है। इसे हमारी मिनिस्ट्री के फेलोज ने बनाया, स्मार्ट सिटी के फेलोज ने बनाया। और ये दिस इज अ स्मार्ट मूव, आई कैन से इसे स्मार्ट मूव। इसे जो हमारी स्मार्ट सिटी में हम लोग बहुत सारी, थोड़ा सा मैं बाद में शेयर करूंगा स्मार्ट सिटी में जो हम काम कर रहे हैं कोविड के दौरान, तो इसे स्मार्ट मूव टू डू, जो कि हमारे फेलोज ने और आपके इंटर्न से मिलकर इस काम करा। तो पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा, इन्होंने इतना अच्छा काम किया। इसमें हर एक स्टेक होल्डर का क्या काम है, हर एक स्टेक होल्डर, जैसे हमारा महुआ है, गाइडलाइंस हमने आज अभी जो माननीय मंत्रीगण जो लॉन्च करेंगे, तुरंत मेरी गाइडलाइंस अभी सारे चीफ सेक्रेटरीज को, सारे स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को, तुरंत लोकल बॉडीज को हमारे वेबसाइट पे भी आ जाएगी। इट्स ऑल रेडी। ये काफी हमारे पीछे मेहनत कर रखी है। जो हमारे स्टेट ड्यूटीज को, उनको हम हैंड होल्डिंग का काम करेंगे, बताएंगे आप कैसे उपयोग करेंगे। इसके लिए भी हमने एक सेटअप किया कि हम लोग एक पूल तैयार करेंगे ट्रेनर्स की, कि जो कि सारे अर्बन लोकल बॉडी को बताएं कि आप इसका कैसे इफेक्टिवली प्रयोग कर सकते हैं। AICTE लोगों को इनके बारे में पूरा पीछे बैकग्राउंड पे जितनी सारी इसको जरूरत है वो सारा काम करेंगे। हमारी ULBs को क्या काम, एवरीथिंग, सारे डिटेल हमने दे रखे हैं, बच्चों की डिटेल दे रखे हैं। और मैं ऐसा लक्ष्य करता हूं कि इस साल तक हम कम से कम तो 25,000 लोगों को इसमें हम जोड़ देंगे, कम से कम 25,000। मैं इस तरह से कर रहा हूं कि हमारे लगभग 4,500 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, मिनिमम 5 का एवरेज में मान, कहीं पे 10 होंगे, कहीं पे 2 होंगे, एवरेज 5 का मान के चलते हैं। हमारी 100 स्मार्ट सिटीज हैं, वहां पे भी कम से कम 10-10 करेंगे। ऐसे हम 25,000 से ज्यादा लोगों को इंटर्न्स हम अलग अलग विषयों पर इस बार ले आएंगे। इससे आउटकम क्या होगा मैंने पहले ही आपको ब्रीफली सारा बता दिया, इसलिए आई डोंट नीड टू रिपीट इससे क्या क्या आउटकम होंगे। इट इज विन 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 एंड ओवरऑल विन फॉर द कंट्री, बिकॉज इफ द यूथ, अगर उनको सही से जो बच्चे निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छी खासी पढ़ाई करते 5 साल तक जॉब ढूंढ रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल पा रहा, सही जॉब नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि उनका अनुभव नहीं है। अब आपको रियल ऑन ग्राउंड काम करते हुए कि आप हमारे स्वच्छ भारत के आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, प्लान तैयार करेंगे, आप ये सब तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट करेंगे,
आपका रियल अनुभव होगा, जिससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, आपके मार्केट रेडनेस बहुत हाई हो जाएगी। और दिस आई मीन स्मार्ट मूव डन बाय द 2 मिनिस्ट्रीज इज गोइंग टू हेल्प इनटू दैट। मैं सर आपकी इजाजत से, मैं चूंकि ये एक स्मार्ट हमारा इसके बारे में कह रहे हैं, मैं ब्रीफली जो है हमारी जो स्मार्ट सिटीज, 100 स्मार्ट सिटीज है, उन्होंने क्या काम किया, यहाँ से तमाम सारे हमारे पत्रकार बंधु हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार के काम, और ये बहुत संक्षेप में है। लेट मी थैंक यू हमारी जो है, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंटेड मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत ह्यूज कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं द वे स्मार्ट सिटीज हैव डन। नमस्कार, मु राजश्री। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई एबे ही ओटीवी रो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करो। बदलुछि समय, बदलुछि अभ्यास। ओटीवी डिजिटल, से विश्वास।